चलो pay attention. Homework sum page 286. Standard is very difficult. Page 286. Homework sum छापा कि आया खुद से? छाप रहे हो ना, टेस्ट में सब वाट लगने वाला है, फाटा फूटेगा सब. Better don't copy. If you have any difficulty, to ask me and then you solve. And this, यही sums आने वाला है boards में. If you know the sum from standard textbook, you know the sum from board paper. Simple as that. Entire board paper will come from standard textbook. Is it clear? So first of all, sixth sum. Nisha sold goods to Asha worth 34,000. I think Asha to sales. Your entry would be Asha to sales 34,000. Asha paid 10,000 immediately and accepted a bill for the balance of 24,000 for 2 months. आपका एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, DR अकाउंट डेबिट टू आशा's अकाउंट 10, 24 and 34. बराबर है. Nisha discounted the bill with the Bank of Maharashtra after 1 month at 15% per annum. So bank discounting charges to BR. Bank discounting charges to BR. I think your discount would be 24,000 पे 15% for 1 month. Why 1 month का discount you understood? 1 month के बाद आपने discount करवाया. 2 महीने का बिल था, 1 महीने बाद करवाया. Got it? Hello. So 1 month का discount. So that is I think 300. So बैंक में आएगा आपका 23,700. Discounting charges 300 to BR 24,000. Got it? फिर ये बिल हो गया डिसऑनर. सो निशा टू आशा टू बैंक 24,000 on a condition that to pay 4,000 and interest in cash. So is the interest coming with cash or with new bill? कैश में आ रहा है, मतलब स्वैप करना है कि नहीं करना है? करना है. सो आशा टू इंटरेस्ट वुड बी हाउ मच? कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट आएगा? 24 में से 4,000 तो मिल रहा है आपको, तो बचा 20,000 पे at the rate of 11% for 3 months. That's 550. So Asha to interest 550. Then आएगा cash to Asha. Cash to Asha में आ रहा है आपका 4,000 of bill amount plus 550 of interest. That is 4,550. And sorry, what will be the amount of new bill? So BR to Asha. I think that will be 20,000. कैसे 20 आया समझा? 24 में से 4,000 आपको मिल चुका है कैश में, और आपको इंटरेस्ट भी मिल चुका है कैश में, तो बिल का खाली 20,000 रुपया बचता है. दैट विल कम विद द न्यू बिल. गॉट इट? सो BR to Asha would be 20,000 rupees. What is happening to this bill? This is also getting dishonored. बेचारी इंसॉल्वेंट हो गई. So Asha to BR 20,000. And then cash bad debts to Asha, that will be 8, 12 and 20,000. Is that clear? 8, 12 and 20,000. Sorted? So that's about your first sum, sixth sum. Then eighth sum में is there any sales entry? Wow. Is there any sales entry? क्या किया तू? शालिनी owes 26,000 to Anand. तो इसमें कोई सेल्स एंट्री आने वाला नहीं है, जिसके लिए she accepted a 3 month bill of 21,000 and give a balance by cross check. तो एंट्री आएगा आपका बैंक डेबिट, BR डेबिट to शालिनी. बैंक डेबिट 5,000, BR डेबिट 21,000 to शालिनी 26,000. Is that clear? उसके बाद क्या हो रहा है? बिल हो रहा है एंडोर्स टू विक्रम. So Vikram to BR. Vikram to BR that will be 21,000. फिर ड्यू डेट पे वापस हो रहा है डिसऑनर, रिन्यूअल का बात चल रहा है. तो शालिनी टू विक्रम 21,000. Sorry, 21,280 because 280 are noting charges. तो शालिनी टू विक्रम 21,280. फिर आ रहा है इंटरेस्ट. कैसे आ रहा है? एक्सेप्टिंग इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट. तो आई थिंक कैश में कुछ आ ही नहीं रहा है. नथिंग इज पेड इन कैश. नथिंग इज पेड इन कैश. तो पार्ट पेमेंट का एंट्री करने की जरूरत नहीं है. फिर आएगा शालिनी टू
interest. Shalini to interest, that will be 650. And then BR to Shalini में क्या क्या आएगा? 21,000 बिल का, 280 नोटिंग चार्जेस का और 650 इंटरेस्ट का, तो 21,930. So BR to Shalini would be 21,930. ये समझ में आया? एक भी रुपया पार्ट पेमेंट में आया नहीं है, कोई भी कैश में पेमेंट हुआ नहीं. So it will be BR to Shalini 21,930 rupees. Is that clear? हेलो. फिर आपका आता है आनंद then drew a bill on Shalini bill notice charges on the due date. Shalini honored or accepted by check. So बैंक टू BR लिखा है, कैश टू BR के जगह बैंक टू BR. 21,930 आया? Any doubt? और एक सम था आपका, that was sum number 7. प्रियंका ओल्ड मीना. तो प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना. तो मीना ने ड्रॉ किया है, हम ड्रॉवर है, मीना है, तो विल देयर बी एनी सेल्स एंट्री? नो. सो बीआर टू प्रियंका वुड बी स्ट्रेट 18,000. इज दैट राइट? फिर मीना एंडोर्स इट टू सागर, तो सागर टू बीआर 18,000. बिफोर द ड्यू डेट वापस रिन्यूअल रिक्वेस्ट आ गया है. Provided that 6,000 and interest should be paid in cash. तो वापस interest is coming in cash. So have you supposed to swap or no? Swap. पहले due फिर received, right? तो मुझे एक बात बताओ, पहले renewal का फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? Dishonor. That would be प्रियंका to सागर 18,000. No noting charges here. So प्रियंका to सागर would be 18,000. Is that clear? फिर इंटरेस्ट का करना है कि कैश का करना है? तो इंटरेस्ट का करना है. तो प्रियंका टू इंटरेस्ट वुड बी ऑन व्हाट अमाउंट विल चार्ज इंटरेस्ट? 18 में से 6 कैश में आ रहा है बिल का, तो 12,000 बैलेंस है. 12,000 पे 8% फॉर 4 महीना, नहीं 3 महीना. 12,000 पे 8% फॉर 3 महीना का 240. सो प्रियंका टू इंटरेस्ट इज 240. इज दैट क्लियर? हेलो. प्रियंका टू सागर वुड बी, पहले डिसऑनर एंट्री प्रियंका टू सागर 18,000, फिर प्रियंका टू इंटरेस्ट 240, फिर कैश टू प्रियंका में आएगा 6,240. 6,000 ऑफ बिल प्लस 240 ऑफ इंटरेस्ट. 6,240, 6,240, 240. तो 6,000 रुपए लिया है ना, 12,000 रुपए आएगा. 18 में से 6 तो मिल रहा है ना, उसपे क्या को इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो? जो पेंडिंग है, लेट दे रहा है, उसपे इंटरेस्ट आएगा. तो बैलेंस अमाउंट इज 12,000. 12,000 पे 8% फॉर 3 months. गॉट इट? सो आपका एंट्री आएगा कैश, पहले प्रियंका टू इंटरेस्ट 240, फिर कैश टू प्रियंका 6,240, फिर बीआर टू प्रियंका वुड बी 12,000. कैसा 12? 18 में से 6 तो आ गया बिल का और इंटरेस्ट भी कैश में आ गया, तो बचा 12,000. 12,000 का बिल ले लिया नया वाला. तो बीआर टू प्रियंका दैट इज 12,000. व्हाट इज हैपनिंग टू द रिन्यूड बिल? शी बिकेम इंसॉल्वेंट अगेन. सो प्रियंका टू बीआर वापस 12,000, और कितना पैसा आया? 6 आया. 6 बैड डेट्स हो गए. तो कैश बैड डेट्स टू प्रियंका, कैश बैड डेट्स टू प्रियंका 6, 6 and 12. दैट क्लियर? कैश बैड डेट्स टू प्रियंका 6, 6 and 12 सॉर्टेड. ऑल ऑफ यू एनी डाउट्स? मिस्टेक्स हुआ है तो समझा जा मिस्टेक हुआ है वो. बिना मिस्टेक के आ गया, किसको आ गया बिना मिस्टेक के? ये वाला सम, ये वाला सम विदाउट एनी मिस्टेक. वन मिस्टेक इसमें इंटरेस्ट में. ओ सीधा 0, बहुत बड़ा मिस्टेक. और बाकी का क्या हुआ? इंटरेस्ट. डिड यू ऑल गेट इट? इंटरेस्ट किस पे चार्ज करना है बॉस? द बैलेंस अमाउंट, जो कैश में दे रहा है उस पे नहीं, जो पेंडिंग अमाउंट है उस पे. ओके, ये ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक होता है, इसके लिए इतना सब सिमिलर सम्स है वहां पे. चलो ले लो अपना नोट. सम नंबर 13 आज खत्म करते हैं. बिया सम नंबर 13. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 13. ड्रॉइंग का क्या है? Sum number 13. See, silence. Look and tell me in whose books will you pass the entry sum number 13?
All of you agree? We are Ajay or we are Khan? Ajay. So we are writing in the books of Ajay. आज के तीनों सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13, 14 और 15. यस है तो है अभी, क्या करेगा. Come on. Sum number 13. We are writing in the books of Ajay. Are all of you able to identify that? Mehta sir. समझ आ रहा है? अजय ना ऊपर अजय 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 आर्थिक कॉलिंग कार्तिक. चलो खान ओवर 15,000 टू अजय. तो खान को अपने को पैसा देना है ऑलरेडी, तो इज योर डेटर. सो इज देयर एनी सेल्स एंट्री? ऑलरेडी इज योर डेटर, राइट? नाउ फोकस. What is he giving you? He accepted 3 bills of 4,000 each for 3 months. तो 3 बिल कितना होता है 4,000 के हिसाब से? 12,000. And pays the balance by NEFT on 4th of October. तो बैलेंस कितना होगा? 3,000 होगा बैलेंस. करेक्ट? चैत्य, कैन यू टेल मी दिस फुल एंट्री? PR1, PR2, NEFT के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना है? बैंक. तो BR1, BR2, BR3 बैंक डेबिट टू व्हाट? खान अकाउंट. याद है 11th में किया था NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, सबके लिए क्या अकाउंट यूज करने का? बैंक. डेट इज 8 अक्टूबर. 4/10/2020. मिला आपको? नरेशन स्किप करना चलेगा, आता है ना? BR एंड NEFT ट्रांसफर रिसीव. NEFT का मतलब बैंक में पैसा दे दिया. और अमाउंट समझ में आया आपको? 15 लेना था आपको. भाई ने 3 बिल्स दे दिए, 4 into 3 12, बचा 3. उसका चेक नहीं दिया, NEFT कर दिया, तो बैंक अकाउंट. तो एसेट्स बढ़ा और डेटर घटा. एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट घटा. तो 3 बिल्स हो गए एक्सेप्ट. 1, 2, 3 बैंक टू खान. बढ़िया. अब सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड. हाँ, अरे 4, 4, 4, 3 and 50. 4, 4, 4, 3 and 50. Read further. Second bill was discounted at 6%. What about the first bill? Retained. If no information is given, we assume that the bill is retained. Simple as that, right? Okay. Veer Patel, tell me. Second bill was discounted. What is the discounting at? Bank discounting charges to BR. Very good. Perfect. Bank discounting charges to BR. BR number 2. Bank discounting charges to BR 2 account. Correct? Let's calculate the discounting charges. Let's calculate the discounting charges. If nothing is given, what will you assume about the date of discounting? That is 4/10, right? And bill amount क्या था? 4. Rate of discount क्या है? 6%. और कितना टाइम का लगेगा? पीरियड 3 महीना. बिल पीरियड वॉज 3 months. तो बैंक 3 महीने के बाद पैसे मिलने वाले, तो 3 महीने का ब्याज काट लेगा. कितना आ रहा है? 3 1 4 0 0 10 into 6 60 रुपीज. तो बिल था 4,000 का. 60 काट के आपको मिलेगा आई थिंक 3940. इज दैट करेक्ट? 3940 is what you get. Understood this part? Yes, sir. So that is the second bill. पहला बिल था retained, second bill था discounted. आगे बढ़ो. Third bill was sent to the bank for collection. Sure. Bank for collection to BR. Third bill was sent to bank for collection, BFC to BR. वो भी कौन से डेट पे होगा? तो बिल
sent to bank for collection, debit BFC bank charges to BFC. to BR3. कितने का था ये भी? 4 था. So I think all the 3 bills का काम तमाम हो गया. All the 3 bills का काम तमाम हो गया. Is that right? तीनों बिल का काम तमाम हो गया. करेक्ट? हेलो. Some interesting animal outside. There are 3 bills, right? First bill was retained, second bill was discounted, and third bill is with BFC. हो गया यहाँ तक? अब पढ़ो results of the bill. तीनों बिल अलग अलग स्टोरीज में है. First bill was retired 2 months before the due date under a rebate of 12%. Biloni, what is the entry for BR retired? Cash rebate to BR. Cash rebate to what? BR. BR1. Is that right? Hello. Stop talking. Cash rebate to BR1. BR1 रेट अपने पास ही था, रिटायर हो रहा है. अच्छा, 2 months before the due date. तो कैसा करने का? पहले जंप मारने का ड्यू डेट. इसका ड्यू डेट क्या होएगा? 11, 12 और 1. मतलब 7/1 होगा. 7 months से 2 महीना पीछे आओ तो 7, 12, 7, 11. तो 7, 11, 20 कैसे किया समझा? 3 महीना 3 दिन आगे जंप फाइनल ड्यू डेट पे पहुंच जाओ. फाइनल ड्यू डेट इज 7 जैन से 2 महीना पीछे आओ. 7 दिसंबर, 7 नवंबर, 7, 11, 20 को रिबेट में रिटायर हो रहा है. अभी रिबेट कैसे कैलकुलेट करने का आपका ध्यान से देखो. बिल वैल्यू क्या थी? 4,000. ओके, उस पे हाँ 12% कितना है रिबेट? 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months, 3 months, 1 month. पक्का कंसेप्ट बैठा है दिमाग में तो तुक्का मार दो. 3 महीने का बिल था. When is he retiring? 2 months before the due date. तो 1 महीना तो पैसा यूज किया है बिल का. जल्दी कितना दिया? 2 महीना जल्दी. तो रिबेट भी कितने टाइम का होगा? 2 महीने. जितना जल्दी दिया उतना डिस्काउंट. आपने बैंक से 10 साल की लोन ली है, 8 साल बाद चुका दी, कितने टाइम का बेनिफिट मिलेगा? 2 साल का. आर यू गेटिंग दैट? सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल. जो 1 महीना वापरा है उसका क्या रिबेट? रिबेट इसका मिलेगा हाउ मेनी मंथ्स बिफोर द ड्यू डेट. जितना बिफोर द ड्यू डेट उतना ज्यादा डिस्काउंट. सो 2 months का डिस्काउंट कितना आता है? 80 rupees is rebate. Is that right? ये आएगा 3920 और ये आएगा 4,000. Is that right? 80 rupees आ रहा है यहाँ पे. करेक्ट. सो एक मिनट. पहला बिल गॉट रिटायर्ड. अब आगे पढ़ो. पहला बिल रिटायर के बाद क्या दिया है? थर्ड बिल वॉज ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस कितना है? 50 रुपया. जस्ट वेयर वॉज द थर्ड बिल? सो BFC का बिल इज गेटिंग ऑनर्ड. So what should be the entry? Just bank charges to Khan. Sorry. Bank for collection. 3 बार तो देखा उधर प्रोफॉर्मा एंट्री तेरे सामने है. एक बार में तो पूरा देखा भी नहीं.
ऐसा थोड़ी चलेगा, कॉपी करने का तो स्विफ्टली करना है। लिखो 5 बार, मस्त 5 times यू राइट। एंट्री नीचे खोल के रखे, मैं उधर ही समझना। बैंक चार्जेस टू BFC, bank charges to BFC. So bank charges to BFC. Okay. डेटर से पैसा आ रहा है, इससे डेटर कौन है यहाँ पे? BFC को आपने बिल देके डेटर बनाया ना, वो पैसा दे रहा है वसूली का। सो बिल सेंड टू BFC। स्टॉप टॉकिंग। कितने का बिल था? 4000। चार्जेस कितना कटा? 50 और 3950। डेट क्या होगी इसकी? ड्यू डेट, राइट? 7/1/21। थर्ड बिल इज गेटिंग ऑनर्ड, फर्स्ट बिल इज गेटिंग रिटायर्ड। तो पहला बिल और थर्ड बिल का स्टोरी खत्म। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन सेकेंड बिल। पढ़ो ध्यान से, व्हाट इज हैपनिंग टू द सेकेंड बिल। सेकेंड बिल वाज रिन्यूड। जैसे रिन्यूड पढ़ा चमकना चाहिए। इज इट ऑनर्ड और डिसऑनर्ड? अश्विन, वेयर वाज द सेकेंड बिल? Discounted BR डिसऑनर्ड। Very good. Acceptor to bank. Who is the acceptor? Khan to bank. ये पहला एंट्री हो जाएगा। अच्छा, विथ और विदाउट नोटिंग चार्जेस? कुछ नोटिंग चार्जेस नहीं दिया है ना, तो विदाउट। फोकस शुभन, कितने का बिल था? 4000। लुक एट द बोर्ड। सो दिस इज। अच्छा, इसका भी ड्यू डेट क्या होगा? 7/1/21 ही होगा ना, ऑब्वियसली 7/1/21 ही होगा, है ना? कि कुछ और होगा? 7/1/21, 100% 7/1/21, करेक्ट? सेम ड्यू डेट। ऑलराइट, देन खान टू बैंक हो गया आपका। दिस इज डिसऑनर एंट्री। रीड फर्दर व्हाट इज हैपनिंग इन द रिन्यूअल। By paying interest in cash at the rate of 10% for 2 months। तो हमने उसको बोला साले बिल डिसऑनर हो गया है, पैसे ला, कुछ तो दे। तो बोला क्या दे रहा हूं मैं? सिर्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, नथिंग एल्स। बिल का 1 रुपया कैश में दिया नहीं, तो स्वैप करना है कि नहीं? इंटरेस्ट इज कमिंग इन कैश, तो यू हैव टू स्वैप 100%। डेलिशा, व्हाट